Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to teach you another topic of chapter chromosome and DNA. The topic is gene expression. Gene expression means protein synthesis. Expression of gene means the expression of gene in the form of protein, and we know that proteins are the biological macromolecule and they are performing different function of the body, and this is the central dogma of life, means survival of the organism depends upon the gene of expression. But this gene expression involved in the synthesis of protein, and this synthesis of protein comprises of two steps. The first one is transcription and the second one is translation. Similarly, this is the graphical representation of gene expression. Here is gene. The first step in the expression of gene or protein synthesis is the transcription, and in transcription, synthesis of messenger RNA from genes takes place. And the second step of gene expression is translation. The information which is present in the form of code in messenger RNA is translated into the sequence of amino acid, and this sequence of amino acid is actually the structure of protein. So gene into messenger RNA and then into protein is known as gene expression, or that is protein synthesis. In the case of transcription, in the case of transcription, this whole process in which gene, the information which is present in the gene is copied into messenger RNA is completed in three phases. The first phase is known as initiation, then polymerization, and the third step is termination. In the case of initiation, let's suppose we have two types of genes, prokaryotic gene and eukaryotic gene, but both genes consist of three regions. Either this is prokaryotic gene or eukaryotic gene consists of three regions: promoter, transcription region and terminator region. Promoter से gene synthesis start, transcription messenger RNA formation, termination ends of transcription. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पे जो मेरे पास इनिशिएशन होगा वो स्टार्ट होता है प्रोमोटर से. अब प्रोमोटर के साथ कुछ एंजाइम होंगे, उसमें से मेरे पास जो एंजाइम होगा दैट विल बी DNA polymerase 2. In the case of eukaryotic gene, DNA polymerase will bind to the binding sequence which is present in the promoter region. DNA polymerase, this is RNA polymerase. RNA polymerase 2 in the case of eukaryotic gene ये प्रोमोटर के साथ बाइंड होगा, क्योंकि इस एंजाइम के लिए प्रोमोटर में कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट है. वो सीक्वेंस हमारे पास है, दैट आर
इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमारे पास है टाटा एंड टीटी गाटा. टाटा also known as minus 10 sequence and tt gata also known as minus 35 sequence. यहां पे माइनस का इसको इस वजह से कहते हैं कि जब यहां पे मेरे पास टाटा प्रेजेंट है, लेट्स सपोज यहां पे मेरे पास टाटा प्रेजेंट है, सो टाटा और ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, सो दैट व्हाई दिस सीक्वेंस इज नोन एज -10 सीक्वेंस. बट इन द केस ऑफ टीटी गाटा ये मेरे पास है टीटी गाटा. इन सीक्वेंस और ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान 35 सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज -35 सीक्वेंस. और ये मैं आपको बता रहा हूं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन. सिमिलरली यूकैरियोटिक जीन में भी आरएनए पॉलीमरेज के लिए सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे. कौन कौन से सीक्वेंस हैं? इन द केस लेट्स सपोज ये मेरे पास है यूकैरियोटिक जीन, यहां पे मेरे पास सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे या तो मेरे पास टाटा या मेरे पास होंगे के प्रोमोटर रीजन में. टाटा also known as -25, अगेन वही बात, टाटा also known as -70 सीक्वेंस. वही न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंसेस की बात हो रही है. अब क्या है मेरे पास, तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये सीक्वेंस अवेलेबल होंगे, ये प्रोमोटर के साथ अटैच होगा. जब तक इस एंजाइम के लिए ये सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होंगे, एंजाइम हमारे पास अटैच नहीं होगा. सुनिए, ये मैं बात कर रहा हूं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन और ये मेरे पास बात हो रही है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक जीन. अब जो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज 2 में लिख रहा हूं और यहां पे मैं सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज लिख रहा हूं, वो इस वजह से कि यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज की मेरे पास 3 टाइप्स होंगी. RNA polymerase 1, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 responsible for the synthesis of ribosomal RNA. RNA polymerase 2 synthesis for the messenger RNA, and the RNA polymerase 3 responsible for the synthesis of transfer RNA. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RNA पॉलीमरेज 2, क्योंकि क्या बनना हमारे पास, क्या बनाना है, मैसेंजर RNA. तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास RNA पॉलीमरेज 2 यूज होगा. अच्छा, बट प्रोकैरियोट्स में चूंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक सिंगल RNA पॉलीमरेज होगा. अब ये तो आपके पास रहा RNA पॉलीमरेज की टाइप्स. इन द केस ऑफ structure of RNA polymerase consists of 4 subunit alpha, beta, beta prime and sigma. These 3 subunits are known as core factor, and this is known as अटैचमेंट फैक्टर. समझा रहा हूं, अटैचमेंट फैक्टर. इन तीनों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और सिग्मा का फंक्शन है कि ये प्रोमोटर के साथ अटैच होने में हेल्प देगा. जब तक मेरे पास सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 अपने प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच नहीं होगा. अब हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर अपने सीक्वेंस के साथ अटैच होगा. जब आरएनए पॉलीमरेज 2 सिग्मा फैक्टर के थ्रू अटैच होगा, तो सिग्मा फैक्टर इससे रिलीज हो जाएगा और जो रिमेनिंग 3 सब यूनिट है ये यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएंगे. क्लियर? अब हमारे पास इनिशिएशन कंप्लीट हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच हो चुका है. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा एंड दैट विल बी नोन एज पॉलीमराइजेशन. In the case of polymerization, ये मेरे पास लेट्स सपोज रहा, ये मेरे पास है DNA.
And we know that DNA consists of small subunits, and these small subunits are known as genes. Let's suppose ये वो जीन है जिससे हमारे पास सिंथेसिस होनी है, जिससे हमारे पास सिंथेसिस होगी मैसेंजर RNA की। ये मेरे पास वो जीन होगा जिससे मेरे पास सिंथेसिस होगी मैसेंजर RNA की, और जीन का वो सेगमेंट, वो स्ट्रैंड जहां से मैसेंजर RNA बनेगा, दैट विल बी नोन एज एंटी सेंस स्ट्रैंड। लेट्स सपोज मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन। लेट्स सपोज अब ये भी देख लें कि ये आप लोगों का वो ट्रांसक्रिप्शन रीजन है। क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज 2 एडेनिन के लिए यूरेसिल, गुआनिन के लिए साइटोसिन, थाइमिन के लिए एडेनिन, साइटोसिन के लिए गुआनिन, एडेनिन के लिए यूरेसिल, गुआनिन टू साइटोसिन, साइटोसिन टू गुआनिन, गुआनिन और गुआनिन। अब ये आपके पास वो बन चुका है मैसेंजर आरएनए। अब ये वो न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं और इन्होंने एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया हुआ है दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। मेरे पास कंप्लीट हो चुका है पॉलीमराइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे दे विल बी नोन एज डीएनटीपीज। इनके पास होते हैं 3 फॉस्फेट, लेकिन जब वो यहाँ पे बाइंड होते हैं तो वो 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं। इनके रिमूव होने से एनर्जी भी रिलीज होगी और उस एनर्जी को यूज करके ये न्यूक्लियोटाइड अपने कंसर्न न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होंगे। तो पॉलीमराइजेशन में मेरे पास सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा मैसेंजर आरएनए का। In the case of termination, टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होगा? यहाँ का जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ये भी आपके पास रहा वो मैसेंजर आरएनए, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि जब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है तो ये जीन का वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे और उस सीक्वेंस की वजह से मेरे पास मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। अब वो कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जो इस टर्मिनेटर रीजन में प्रेजेंट है जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप होगी? उनमें हमारे पास आता है गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास बेसिस होंगे। तो फिर क्या होगा कि जब यहां तक मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो ये सीक्वेंस भी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए में चले जाएंगे। तो ये आपके पास मैसेंजर आरएनए का लास्ट पार्ट होगा एंड दिस विल बी नोन एज जीसी बेस हेयरपिन। जीसी बेस हेयरपिन। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये मैं ऊपर बना देता हूं। ये पूरा आपके पास है मैसेंजर आरएनए और ये वो टर्मिनेटर के सीक्वेंस है जो बाद में हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ये रिमूव हो जाते हैं। सो जैसे यहां से मेरे पास मैसेंजर आरएनए सेपरेट होगा, ये जीन जो अनकॉइल्ड हुआ था ये दोबारा हमारे पास कॉइल्ड हो जाएगा। जीन कॉइल्ड, ये मैसेंजर आरएनए अब आना है इसके साइटोप्लाज्म में और वहां पे इसने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, मतलब वहां पे अब हमारे पास ट्रांसलेशन होनी है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अब वो कॉपी हो चुकी है एक सिंगल स्ट्रैंड में एंड दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। तो जैसे ही मैसेंजर आरएनए मेरे पास बन जाएगा मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हमारे पास होगा ट्रांसलेशन।